Good morning, students. Today we will talk about differential equations, June 2024 paper, BSc Journal BMTC 132. Okay, so we'll start with the first question. Now, I hope you people are familiar with the syllabus. Okay, now when we read the first question, so first question has 10 parts के 10 पार्ट है, हर क्वेश्चन की वेटेज है 2 मार्क्स. सो हमें क्या करना है, हमें शॉर्ट प्रूफ या काउंटर एग्जाम्पल देना है. बेसिकली अगर स्टेटमेंट सही है तो हमें उसे प्रूफ करना है, और अगर स्टेटमेंट रॉन्ग है तो हमें उसका एक काउंटर एग्जाम्पल देना है. ओके, सो देर विल बी 10 सच पार्ट्स. तो हम एक पार्ट से शुरू करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट अस रीड द फर्स्ट पार्ट. हमें खुद डिसाइड करना है कि पहले ये ट्रू है या फॉल्स है, एंड देन उसके बाद कोरस्पॉन्डिंगली आंसर करना है. फर्स्ट पार्ट, e to the power x and e to the power minus x are linearly independent solutions of this differential equation. So अगर आप ध्यान से देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, है ना. दो चीज़ें कैसे, पहले तो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, और दूसरा ये भी शो करना है कि दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है. समझ आ रही है बात. तो बस अब इसको करना शुरू करते हैं, ठीक है. लेट अस सी हाउ वी कैन डू इट. ओके, सो नाउ differential equation is like this, yes or no? Okay, let this be question 1. Now we'll start with e to the power x. Let y is equal to e to the power x. So differentiating it one time, what do we get? What is the derivative of e to the power x? E to the power x. Now again differentiating with respect to x, again differentiating with respect to x, y double dash is equal to e to the power 2x. So I have got the value of y, y dash and y double dash. हमें क्या चेक करना है कि ये इसके सोल्यूशन है या नहीं है. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हमारे पास y डबल डैश माइनस वाई. सो यहाँ पे हम y डबल डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं और y की वैल्यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y डबल डैश? इट इज हेयर, कैन यू सी. सो y डैश इज e to the power x and y is e to the power x. E to the power x minus e to the power x is 0. So this implies e to the power x is a solution of y dash minus y is equal to 0. Okay. Similarly, we will check whether whether y is equal to e to the power minus x is also a solution or not. ठीक है. अब दूसरा करते हैं. And now again let y is equal to e to the power minus x. Differentiating with respect to x. Differentiating with respect to x, what do we get? y dash e to the power minus x, and x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस, बाहर आ जाएगा. नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, what do we get? y डबल डैश माइनस e to the power माइनस x, और एक और माइनस आ जाएगा. दिस मीन्स इट विल बी इक्वल टू. ओके, now can you see y is this and y double dash is e to the power minus x. Now again we'll check whether it is a solution of the differential equation or not. What was the LHS of this? Y double dash minus y. What is the value of y double dash? E to the power minus x. What is the value of y? E to the power minus x, and this comes out to be 0. So I'm getting 0. So this implies, what does this imply? This implies e to the power minus x is also a solution of y dash minus y is equal to 0. So what we have proved? We have proved that e to the power x, can you see this? E to the power x and e to the power minus x are the solutions of this. But we have not proven that कि वो linearly independent भी है. ठीक है, अब linearly independency चेक करते हैं. क्या चेक करते हैं? आपको पता है लीनियरली इंडिपेंडेंस चेक कैसे करते हैं? उसके लिए हम डिटर्मिनेंट यूज़ करेंगे क्लास 12th का. ओके, सो एक वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं रॉन्स्कीन. रॉन्स्कीन, ओके, इट स्टैंड्स फॉर W. इसमें ये होता है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस है y1 y2, आप उनके डेरिवेटिव्स यहाँ पुट कर दो. इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज y1 and y2 are the linearly independent. Now we know that e to the power x and e to the power minus x are two solutions of this differential equation.
Now we have to check whether e to the power x and e to the power x are linearly independent or not. Now to check whether they are linearly independent or not, we'll use a concept called the concept of Wronskian. Can you see this? आज हम Wronskian करेंगे. Wronskian क्या होता है? इसमें हम डिटर्मिनेंट यूज़ करते हैं. Wronskian stands for W. It is a determinant of y1, y2 and their corresponding first derivatives. इसमें क्या होता है, अगर आपको y1 और y2 दो फंक्शंस दिए हुए हैं और आपको ये पता करना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो आप पहले वो दोनों लिख दोगे और फिर उनके डेरिवेटिव्स लिख दोगे यहाँ पे. कैन यू सी द डेरिवेटिव्स? और उसका डिटर्मिनेंट चेक करोगे. अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है, दिस इम्प्लाइज सो y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. ओके, सो इन दिस केस हम इसको y1 ले लेंगे, ओके, एंड इसको y2 ले लेंगे और हम चेक करेंगे क्या रॉन्स्किन ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है, सो वी विल से लेट y1 इज इक्वल टू e टू द पावर x, ओके, एंड y2 इज e टू द पावर माइनस x. एंड व्हाट डू वी वांट? हमें फर्स्ट का डेरिवेटिव चाहिए e टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव चाहिए e टू द पावर माइनस x. अब ये चारों वैल्यूज़ हम लोग रॉन्स्किन वाली डिटर्मिनेंट में पुट कर देंगे और चेक करते हैं कि ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है. ओके, सो नाउ लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस रॉन्स्किन. W is equal to, what is y1? y1 is the first solution. What is y2? y2 is the second solution. And here it will be the derivative of this, it will be the derivative of this. If I solve it, what do I get? आपको डिटर्मिनेंट याद होगा ना 2 क्रॉस 2 का, सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेते हैं. माइनस e to the power x, okay, so it will be -1 minus 2, which is not equal to 0. So you will write, since w is not equal to 0, this implies y1 and y2 are linearly independent. Okay, अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. इसमें ये कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइंस आर इंटरकनेक्टेड बाय द रिलेशन L स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2. हमें चेक करना है ये सही है या गलत है. अगर सही है तो प्रूफ करेंगे और गलत है तो विल फाइंड कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी. ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसको. सो डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वेक्टर. लेट ए बी अ वेक्टर, ओके, xi plus yj plus zk. Okay, x is a component in the x-axis direction, y is a component in the y direction, z is a component in the z direction. So any vector in 3D is represented by this thing xi plus yj plus zk. Now what is L? L is nothing but x upon under root of x square y square z square. M is nothing but y upon under root of x square y square z square. Similarly, n is z upon under root of x square plus y square plus z square. Now we will check L square plus m square plus n square is equal to what? Okay, so now L square plus m square plus n square. I'll substitute the value of L here. So it will be x upon under root of x square plus y square plus z square का whole square. Similarly, value of m, y upon x square plus y square plus z square whole square plus z upon under root of x square y square z square whole square. Okay, now we will try to see what this comes out to be equal to. What is this? X square अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट गया है ना, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड हियर इट विल बी जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अगर हम देखें इन सबका डिनोमिनेटर सेम है तो इनको ऐड कर सकते हैं. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर,
यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ से वाई स्क्वायर आ गया, यहाँ से जेड स्क्वायर आ गया, एंड दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे दिस इज फॉल्स एंड दिस इज द करेक्शन पार्ट। ओके, दिस इज द करेक्शन पार्ट। हैप्पी? नाउ विल डू द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या करना है, हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है। ओके, सो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं आर, थीटा और फाई की फॉर्म में। एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता है उसमें एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट होता है। सो अगर हमें आर, थीटा और फाई पता है तो हम एक्स, वाई और जेड निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला। सो एक्स क्या होता है, आर साइन फाई कॉस थीटा, वाई इज आर साइन फाई साइन थीटा, जेड इज आर कॉस फाई। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर मुझे थीटा और फाई और आर मिल गया तो मैं तीनों कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट इज गिवन लाइक दिस। ओके, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ, ध्यान से देखो, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में दिया हुआ है 2 π/4 π/3। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ हमारे ओरिजिनल ये वाले से, कैन यू सी दिस, अगर मैं इसे कंपेयर करूँ आर, थीटा और फाई से, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, आर क्या आ गया 2, थीटा क्या आ गया π/4 एंड फाई क्या आ गया π/6। अगर मैं ये तीनों वैल्यूज़ उठा के यहाँ पे पुट कर दूँ तो मुझे एक्स, वाई, जेड तीनों मिल जाएंगे। सही बात है, हम निकालते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज एक्स क्या था हमारे पास, ये रहा फॉर्मूला, आर साइन फाई कॉस थीटा, आर इज हाउ मच 2, साइन फाई का है ये रहा π/3 और कॉस थीटा कॉस π/4। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगी इसकी वैल्यू, चेक करें। सो 2 साइन 30 कितना होता है, साइन 60 इज √3/2 इंटू कॉस 45 1/√2। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा √3/√2। ओके, नाउ विल कैलकुलेट y इज व्हाट, r साइन फाई साइन थीटा, अगेन 2 साइन π/3 साइन π/4। ओके, now 2, what is sin 60, √3/2, sin 45 1/√2, this is also √3/√2, but I think z is remaining, z is r cos phi, r is 2, phi is how much π/3 and cos 60 is 1/2 which gives us 1. So can we say this is my x coordinate, this is my y coordinate, this is my z coordinate? So my combined answer will be x comma y comma z is √3/2, √3/√2, √3/√2 and 1. So that means this is correct. Okay. अब हम क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है f(x,y) का x³ माइनस 4x² y² प्लस 8y², हमें ये निकालना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पहले f को डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, देन विद रिस्पेक्ट टू y। इसे हम पार्शियल डेरिवेटिव्स कहते हैं। लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम। आपको f(x) दिया हुआ है, आपको f(x,x,y,y) निकालना है। दैट मीन्स पहले आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर थर्ड टाइम डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में, और फिर लास्ट में एक और बार y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। अब इसे हम करके देखते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, f(x,y) इज इक्वल टू x³ ओके 4x² y² प्लस 8y²। सो सबसे पहले हम इसको f(x) निकालते हैं। f(x) फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो y को हम कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट करेंगे, और जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम x को कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट करेंगे। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 3? इट इज 3x² माइनस y स्क्वायर इज कांस्टेंट, 4 इज कांस्टेंट, तो इसको तो एज इट इज रहने दो। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x²?
2x class 12th and 11th में भी था डेरिवेटिव. नाउ what will this be equal to? This will be 0. Why? Because when I'm differentiating with respect to x, y वाला constant होता है. ठीक है, तो हमारा जो पहला डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या आ गया, 3x² माइनस वेट दिस इज आई थिंक 8xy² है ना. नाउ मैं फिर से लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. अभी x चाहिए ना, दो बार है इसमें, देखो x y. सो दिस विल बी f(x)x. इसका डेरिवेटिव क्या होगा 6x. इसका डेरिवेटिव क्या होगा, बिकॉज y² कॉन्स्टेंट 8 कॉन्स्टेंट विल बी 8y². ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसे y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है. जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x वाले टर्म को कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे. नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग, वी आर डिफरेंशिएटिंग अगेन, बट इस बार हम विद रिस्पेक्ट टू y कोऑर्डिनेट करेंगे, है ना. कैसे लिखेंगे इसको, f(x)x(y) इज इक्वल टू, इसको ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा 0, इसका क्या होगा 16y. अब मुझे एक बार और करना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y. इसको जब आप दोबारा करेंगे तो क्या बनेगा, f(x)x(y) तो था ही, अब f(x)x(y) हो जाएगा. सो 0 तो 0 ही है, 16 दिस विल बी -16, सो -16. ओके, बट क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था ये इक्वल टू 0 है, बट हमारा तो 0 के इक्वल नहीं आ रहा. दैट मीन्स जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है ये चीज़ ये फॉल्स है. ठीक है, एंड दिस इज द करेक्ट वैल्यू. अब हम सब क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट करेंगे. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन दिया है f(x)y साइन इनवर्स, ये एक्सप्रेशन ये होमोजीनियस है या नहीं है. ऑब्वियसली हमें चेक करना है कि होमोजीनियस है या नहीं है. अगर ये होमोजीनियस होगा तो हम बोलेंगे होमोजीनियस है, और नहीं होगा तो विल से इट्स नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन. अब क्वेश्चन ये आता है कि पता क्या चलता है होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है. नाउ लुक एट दिस, लेट f be a function in x and y. We say that f is a homogeneous function if when we substitute x equal to kx, अगर हम x की जगह kx रख दें और y की जगह ky रख दें. यहाँ एक्सप्रेशन में देखिए आप, अगर हम x की जगह, दिख रहा है सबको ये वाला, x की जगह kx रख दें और y की जगह ky रख दें, तो हमारा जो एक्सप्रेशन आना चाहिए ना उसके अंदर k⁴n कॉमन आ जाएगा. आप बोलोगे समझ नहीं आया. बेसिकली x की जगह kx पुट कर दो, y की जगह ky पुट कर दो, तो जब आप इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे उसमें k की कोई पावर कॉमन आ जाएगी. क्या आ जाएगी, कांस्टेंट की पावर जो है वो फैक्टर आउट हो जानी चाहिए, और क्या बचना चाहिए f(x)y. n जो यहाँ पे दिया है पावर में, ये कुछ भी हो सकता है. ठीक है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इवन 0 भी हो सकता है. तो हम क्या करेंगे इस एक्सप्रेशन में, पहले x की जगह kx रखेंगे, y की जगह ky रखेंगे, और उसको देखेंगे क्या k की पावर n कॉमन आ रहा है कि नहीं. समझ आया, अगर मैं k कॉमन ले आया इस एक्सप्रेशन में से तो मतलब वो फंक्शन होमोजीनियस है, अदरवाइज नहीं है. अब हम चेक करते हैं. ठीक है, हमें f(x) क्या गिवन है, देखते हैं हमें f(x) क्या गिवन है. हमें f(x) गिवन है साइन इनवर्स √(x) √(y) √(x) प्लस √(y). क्या करना है हमें, हम सब्सटीट्यूट करेंगे कुछ, क्या पुट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू kx एंड y इज इक्वल टू ky, और चेक करेंगे कि क्या k की पावर कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है, सो f kx ky इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट में क्या आ जाएगा, kx आ जाएगा, y की जगह क्या आ जाएगा, ky आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, kx आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ky आ जाएगा. अब अगर हम ध्यान से देखें कुछ कॉमन आ रहा है क्या न्यूमरेटर में, हाँ सर रूट के कॉमन है, रूट के कॉमन ले लिया. ठीक है, और यहाँ से क्या कॉमन आ गया, नीचे से भी रूट के कॉमन आ गया, √x प्लस √y इज इक्वल टू दिस. नाउ कैन आई से रूट के कैंसिल आउट हो गया. सो आई एम गेटिंग दिस वैल्यू अगेन √(x माइनस y अपॉन √(x प्लस √(y). अब आप कहेंगे सर इसमें तो आपका k कुछ आया ही नहीं,
कि कॉमन आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया ना, बेसिकली कॉमन हो गया कैंसिल हो गया, पर आप तो कहते हैं यहाँ पे कुछ आना चाहिए। यस, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ k की पावर 0? यस और नो? बिकॉज नहीं है। और ये बताइए क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है? अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट करूँ एफ ऑफ के एक्स के वाई, क्या नहीं से k की पावर 0 और ये एफ एक्स वाई है ना? तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हमने शुरू किससे किया? के एक्स के वाई से, और हमें एंड में आंसर क्या मिल रहा है? एंड में हमें k की पावर 0 एफ ऑफ एक्स वाई मिल रही है। यही तो डेफिनेशन थी होमोजेनियस फंक्शन की, कि k की कुछ पावर कॉमन आनी चाहिए और बाद में क्या बचना चाहिए? एफ एक्स वाई। तो कहना है इसे कि ये एक होमोजेनियस फंक्शन है। यस, आई कैन से होमोजेनियस फंक्शन है। कि मैंने क्या कहा था शुरू में, k की जो पावर n है कुछ भी हो सकती है ना? ठीक है, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इक्वेशन इट इज़ ऑफ ऑर्डर 2 एंड इट्स डिग्री इज़ 1। तो हमें चेक करना है कि क्या इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है या नहीं है। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन, डोंट यू थिंक हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर और डिग्री क्या होते हैं? जब हमें पता चलेगा ऑर्डर और डिग्री क्या है, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि इसका सेकेंड ऑर्डर है या डिग्री 1 है या नहीं है। तो एक डेफिनेशन बता देता हूँ मैं आपको, इससे आपको पता चल जाएगा कि ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। नाउ एवरीबॉडी लुक एट दिस। सो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज़ नथिंग बट द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। सो अगर मान लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, उसमें फर्स्ट ऑर्डर भी है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, तो जो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही उसका ऑर्डर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में थर्ड डेरिवेटिव दिया हुआ है और उसके बाद वाला हायर डेरिवेटिव नहीं है, तो ऑर्डर विल बी 3, विच इज़ द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, नीचे एग्जाम्पल भी है, डोंट वरी। नाउ विल टॉक अबाउट डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री को ध्यान से देखते हैं, डिग्री क्या होती है? डिग्री इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। दैट मीन्स पहले तो आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढ लो और फिर देखो उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। लुक एट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, फर्स्ट या सेकंड? अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोग इंटरेस्टेड किस में है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो अगर हम यहाँ देखें, इन दिस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज द सेकंड डेरिवेटिव, देन ऑर्डर विल बी 2। फेयर इनफ। अच्छा, अब डिग्री की बात करते हैं। जैसा मैंने कहा था, डिग्री क्या होती है? एक बार हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया, उसकी जो पावर होती है, अगर मैं इस 2 को ध्यान से देखूँ तो ये क्या है? It is the power of the highest order derivative. Yes or no? It is the power of the highest order derivative. So power of the highest order derivative is also 2. So in this case we can say the order is 2 and degree is 2. Now, but all the above things, they are valid when the differential equation is free from surds. अभी सर्ड्स क्या होते हैं आपका सवाल होगा, है ना? सर्ड्स बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं? जब आपकी पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में ना हो, लाइक पावर ऐसे 1/3 ना हो, पावर ऐसे 1/5 ना हो, या 1/2 ना हो, पावर शुड बी अ होल नंबर। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखिए, सबकी पावर क्या है? 2 है, 3 है, 0 है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी एक्सप्रेशन में किसी भी डेरिवेटिव की पावर या किसी भी वाई वेरिएबल की पावर सर्ड्स की फॉर्म में, सर्ड्स मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म, समझ आया आपको? तो हमें इस चीज़ को अवॉइड रखना है। अगर हम ध्यान से देखें, ये सर्ट्स क्यों पढ़ना ज़रूरी है? अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में पावर क्या है? 3/2। तो बेसिकली इसमें सर्ड इन्वॉल्व है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसमें सर्ट्स इन्वॉल्व है। तो अब सबसे पहले मुझे इस 3/2 को होल नंबर में कन्वर्ट करना है। बस वही देखेंगे कि होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब सारी पावर होल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है इसके अंदर। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लूँ, ओके, नाउ व्हाट डू आई हैव? 3/2 इज इक्वल टू y डबल डैश। अब 3/2 प्रॉब्लम कर रहा है ना, बेसिकली अपॉन में जो 2 है वो प्रॉब्लम कर रहा है, 3 तो चल जाएगा ना। सो हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इफ़ आई डू द स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, डोंट यू थिंक लेफ्ट में आपके पास ये बचेगा 3/2 का होल पावर 2, एंड राइट में आपके पास y डैश की पावर 2 हो जाएगा। ये 2 कैंसिल हो गया। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा कुछ इस तरह से, यस और नो? और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? इस तरह से। अगर आप देखें तो आप सबकी पावर होल नंबर, अगर आप चाहें तो इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं। चलो एक्सपैंड भी कर देते हैं। व्हाट इज़ a प्लस बी होल क्यूब? आई होप हमें पता है a प्लस बी होल क्यूब कितना होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, ओके, प्लस 3a स्क्वायर बी
plus 3ab square. Okay, so it is equal to y double dash का square. Now look at this, ये एक्सप्रेशन क्या बचा, ये 1 बचा, ये बचा पावर 6, ये हो गई आपके पास y डैश की पावर 4, ये बची आपके पास y डैश की पावर 2. बट इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? अगर मैं ध्यान से देखूं इस पूरे में तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है. यानी कितना डेरिवेटिव दिख रहा है? y डबल डैश मतलब होता है 2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. बेसिकली इसमें ऑर्डर जो होगा इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑर्डर हुआ, बिकॉज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है तो ऑर्डर 2 हो गया. अब इसी की पावर चेक करनी है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है इस पूरे एक्सप्रेशन में? अगर मैं ध्यान से देखूँ तो सिर्फ 2 है, सो इसकी डिग्री भी 2 है. सो क्या जो हमें एक स्टेटमेंट दी थी वो सही थी? क्या ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है? इससे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो है पर डिग्री 1 नहीं है. सो द गिवन स्टेटमेंट वॉज फॉल्स एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ठीक है, दिस थिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ओके, अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट. इस क्वेश्चन में क्या पूछा है ध्यान से देखते हैं. इसमें पूछा गया है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c इन दिस इक्वेशन इज दिस. तो हमें चेक करना है कि क्या ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है. ठीक है, सो इसके लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है. जितने भी इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उन्हें हमें रिमूव करना होता है, बेसिकली एलिमिनेट करना है. तो इसमें अगर हम देखें इस एक्सप्रेशन के अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक है, तो हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे और ये वेरिएबल ये पैरामीटर रिमूव हो जाएगा. चलो देखते हैं कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, रेडी. सो व्हाट इज गिवन टू अस? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर is equal to c square. Okay, since it has only one parameter, it has only one parameter or arbitrary constant. Okay, so we'll differentiate it just one time. So let us differentiate this one time. So differentiating with respect to x, what do we get? What is the derivative of x square? It is 2x. What is the derivative of y square? It will be 2y and dy by dx. Yes. And what will be the derivative of c square? Since it is a parameter, it's a constant, it's an arbitrary constant, so its derivative will be equal to 0. अब इससे क्या मिला हमें? इससे हमें मिला 2x is equal to 2y. इसको उधर ले जाओ तो 2y, so it will be 2y dy by dx. 2 से 2 cancel, so now I have y dy by dx. dx को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ आप, x dx is equal to y dy, and if you bring it to the left hand side, what do we get? x dx minus y dy is equal to 0. अगर हम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, हमें यही तो देखना था कि वेदर दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट. और अगर हम ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल वैसे ही आ रहा है. दैट मीन्स ये जो हमें गिवन था ये ट्रू है. ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट. यहाँ पे हमें क्या दिखाना है? हमें कहना है, हमें चेक करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ये है. ओके, वी हैव टू चेक कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ये है या नहीं है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज व्हाट वी आर गिवन. सो फर्स्ट स्टेप इज divide all the expression by x y z. Okay, divide all the expression. So when I divide this expression by x y z, what do I get? Let us check. Okay, so I am dividing each and every term by x y z. I hope it is visible to you. Is equal to 0 divided by x y z. Okay, now if I look at the first term, y gets cancelled by y and z gets cancelled by z, so I am left with dx by x. Here z and z, x and x, so I am left by, okay, left with this. Here also अगर हम यहाँ देखें तो क्या बचेगा? यहाँ पे x और y कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 dz by, and here यहाँ पे 0. Okay, now look at this carefully. If I integrate the above expression term by term, integrating the above expression, okay, let us check what do we get. Dx by x
2 is constant, it comes out dy by y minus 3 constant dz by z integration and integration of this 0. Yes or no? Now let us now look at this. Don't you think this integration is ln x or log x? There is also ln y. This will be ln z. Yes or no? And what about this one? This will be a constant term. Let us call this k or something like that. I hope you are familiar with the properties of log also. I hope you know the properties of log. So this is ln x. This will be ln y square. And this 3 will get into the power of z. And now I have k. Yes or no? Okay. So now what I will do is, I'll take this to the other side and see what happens. If I take it to the other side, I am getting this ln x plus ln y square is equal to k plus ln z cube. Yes or no? And now look at this. These two. This will be ln x y square. Why? Because I hope you know this formula. Log of x into y is log x plus log y. Okay? Now similarly, but in this case what happens, यहाँ पे थोड़ा confusion है, तो हम क्या करेंगे, k को हम कुछ भी ले सकते हैं. तो पता k मतलब क्या होता है, constant होता है. तो अगर मैं इसकी जगह, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसकी जगह ln c ले लूँ, ये भी तो constant है. सो द थिंग इज, मुझे ये एक्सप्रेशन की तरफ जाना है ना, तो मैं इस एक्सप्रेशन को लाने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके, तो मैंने इसको ln c ले लिया, ln z क्यूब. अब यहाँ पे भी लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्या बन जाएगा, ln c z क्यूब. और लेफ्ट में क्या था, ln एक्स वाई स्क्वायर. अब ln से कैंसिल आउट हुआ, क्या बचता है मेरे पास, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी जेड क्यूब. सो दिस इज अ सोल्यूशन. कैन वी से दैट इट इज सिमिलर टू व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? So the given statement in the question is true. Okay, and this is the explanation. Students, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट करेंगे. लुक एट दिस क्वेश्चन. क्या कहा है इसमें, हमें कहा गया है कि solution of this differential equation is this. So we have to check whether this is a solution of this or not. Okay, in order to solve this, we should know one more thing. Okay, when you see this differential equation, you see that it is equal to 0. So actually by definition it is a homogeneous differential equation. Now why is it a homogeneous differential equation? Let me give you the definition of this homogeneous differential equation. A homogeneous differential equation is basically a higher order linear differential equation, okay, and it is equal to 0 and it has no terms containing only the independent variable x. ओके, सो होता क्या है, इसके अंदर आपके पास सारी की सारी जो टर्म्स होंगी उसमें y और उसका डेरिवेटिव होगा. जैसे यहाँ पे ये सब डेरिवेटिव्स है और y है. यहाँ पे कोई भी ऐसा टर्म नहीं होगा इसमें सिर्फ x वेरिएबल हो, इसलिए हम होमोजीनियस कहते हैं. अब इतना स्ट्रेस क्यों डाल रहे हैं कि होमोजीनियस है? बिकॉज ये होमोजीनियस है तो हम इसे सॉल्व करना जानते हैं, बिकॉज इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है. आर यू गेटिंग इट? बिकॉज ये होमोजीनियस है तो हम इसको एक मेथड से सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलो वो मेथड समझते हैं. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू फाइंड इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है देखते हैं. ओके, सो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय, ओके लेट मी राइट द वर्ड फर्स्ट. सो ऑक्सिलरी, कैन यू सी द स्पेलिंग, ऑक्सिलरी इक्वेशन. इसमें हम क्या करते हैं, हम ये जो कैपिटल डी है उसको एम से रिप्लेस करते हैं और वाई को हटा देते हैं. ओके, सो क्या स्टेप होता है हमारे पास, पहला रिप्लेस डी by m and remove y. Okay, now if you do it here, what do we get? I'll get a polynomial in m cube minus m square minus 12m is equal to 0. Now it becomes an auxiliary equation and it is actually a polynomial in m. So can you find the roots of this? Let us all solve this. Okay, can I say m is common in this? So I'll have m square minus m minus 12 is equal to 0. I can further factorize it by middle term splitting. Okay, I can write it like this. Yes, is equal to 0. Further, if I take m common, I'll get m minus 4
If I take 3 common, I'll get m minus 4. Okay, so my final factorization will be m into m minus 4, m plus 3 is equal to 0. So I hope you know this, like you know how to solve a polynomial like this. So यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आप इसको 0 पुट करेंगे तो m इज इक्वल टू 0, इसको 0 पुट करेंगे तो m इक्वल टू 4, और अगर आप इसको 0 पुट करेंगे तो m इक्वल टू -3. ओके, क्योंकि ये शुरू से हमें पता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ. जब आप m निकाल लेते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, तो लेट मी राइट दैट फॉर्मूला. सो अगर हमारे पास अगर हमारे पास अलग अलग डिस्टिंक्ट m1, m2, m3 एंड सो ऑन होता है, तो जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय, तो हम क्या करते हैं, जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास. जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय, फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू ओके c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x प्लस c3 e टू द पावर m3x एंड सो ऑन. अब आप मुझे बताओ यहाँ पे m1 क्या होगा. कहना इसे ये मेरा m1 है बिकॉज ये मेरा पहला m है, इसको हम m2 ले सकते हैं और इसको हम m3 ले सकते हैं. यस और नो. जब इसको m1, m2, m3 लेंगे, यहाँ पे अगर हम पुट करें, अब यहाँ पे प्लस लिखने की ज़रूरत तो नहीं बिकॉज 3 ही जीरोज़ है हमारे पास, तो हमारा जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा. सो ये हमारा बेसिकली एक तरह से फॉर्मूला है. अगर हम इसको देखें तो हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, अगर मेरे पास ये 3m आ जाएंगे तो मेरा सोल्यूशन होगा c1 e की पावर m1 इज़ 0, तो मैं क्या लिखूँगा 0 इंटू एक्स, c2 e टू द पावर m2 कितना है 4x एंड c3 e टू द पावर दिस x. अब मुझे बताइए आप व्हाट इज e टू द पावर 0x, e टू द पावर 0 विच इज़ 1, c2 e टू द पावर 4x प्लस c3 e टू द पावर -3x. और मुझे ये ऐसा लग रहा है कि यही हमें दिया हुआ है ना. सो दैट मीन्स द गिवन सोल्यूशन इज ट्रू. ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 10th पार्ट. ओके, यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये 1/x² इज इट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर और नॉट. अब चेक कैसे करते हैं कि ये 1/x² इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा या नहीं होगा. उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम चेक करेंगे क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है या नहीं होती है. अब आपका क्वेश्चन होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है एंड कैसे पता चलता है ये सब. तो मैं इसको सॉल्व करते वक्त आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब होता है. ठीक है, चेक करते हैं. चलो, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं. व्हाट इज द एक्सप्रेशन दैट वी हैव. Okay, now we'll multiply this differential equation by its integrating factor. So multiply the above expression, the above equation by the integrating factor. What is the integrating factor here? 1/x². Okay, 1/x². So let us multiply. What do we get? x² plus y² into 1/x² dx. Yes, then it will be 2xy upon x² dy. Correct? Now can you simplify it? Don't you think this expression actually becomes x² plus y² upon x² dx, and this becomes I think 2y upon check x dy. Okay, now look at this expression. It can be further simplified to 1 plus y² upon x² dx minus 2y upon x dy is equal to 0. Yes or no? Now what is an exact differential equation? So if I say that this is m, basically the coefficient of dx is represented by capital M and the coefficient of dy is represented by n dy. So can I say this differential equation is of this form, m dx plus n dy. Now if, listen to me, if the partial derivative of m is equal to the partial derivative of n,
देन वी से दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव इसके पार्शियल डेरिवेटिव की इक्वल आ जाता है, तब हम कहते हैं कि जिस एक्सप्रेशन से आपने स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई किया था वो इसका एग्जैक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। समझ आया क्या किया हमने? सुनिए फिर से। हमने क्या किया, स्टार्टिंग वाले एक्सप्रेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर था। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके यहाँ पे ले आए हैं जहाँ पे हमें m मिल गया। m होता है dx का कोफिशिएंट और n होता है dy का कोफिशिएंट। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या इन दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव्स आपस में इक्वल हैं। अगर इक्वल हो गए तो दैट मीन्स जो आपने ऊपर एक्सप्रेशन लिखा था वो करेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। और अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल नहीं हुए तो आप बोल देंगे दोनों करेक्ट, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था शुरू में वो करेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं कैसे करते हैं इसको। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें m मिल गया। अब मैंने कहा था पार्शियल डेरिवेटिव, तो हमें ना एक्चुअली m का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले m लिख लेते हैं। m क्या आएगा? m आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड n क्या आएगा? माइनस 2y अपॉन एक्स। ओके, नाउ लिसन टू मी। मैंने कहा था पार्शियल डेरिवेटिव, m किसका कोफिशिएंट है? dx का। तो m का पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू y एंड n किसका कोफिशिएंट है? dy का। तो हम n का पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो उल्टा करते हैं बेसिकली। सो डेल m, इसको बोलते हैं dm नहीं बोलते, डेल m बोलते हैं। डेल m अपॉन डेल y, 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही हो गया। ओके, y का डेरिवेटिव क्या होगा? 2y, फेयर इनफ, अपॉन में एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा बिकॉज वो कॉन्स्टेंट होगा। तो कहना इसे डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू 2y अपॉन एक्स स्क्वायर। सही बात है। नाउ अब n का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, नाउ अगेन y विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। सो मैंने क्या किया, माइनस 2y तो अलग ले लिया। अब पता है 1 अपॉन एक्स बचा ऊपर ना, यहाँ 1 अपॉन एक्स बचा। व्हाट इज द डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अब मुझे क्या दिख रहा है? सर डेल m अपॉन डेल y इज 2y अपॉन एक्स स्क्वायर, डेल n अपॉन डेल x इज इक्वल टू 2y अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आई विल से सिंस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m with respect to y is equal to partial derivative of n with respect to x, so this implies that this equation is exact. That means let us call this 1. So this implies equation 1 is exact differential equation. What? Exact differential equation, exact differential equation। एंड जो आपने स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई किया था दैट इज अ करेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते, सपोज करो इक्वल नहीं आते, तो हम बोलते हैं कि इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट एंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नॉट करेक्ट। आर यू गेटिंग इट? बट क्योंकि इस केस में इक्वल आया सो दिस इंप्लाइज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज द करेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, व्हाट इज द राइट आंसर? इट इज द करेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। Okay, is it visible to you? Good.